Okay, good morning, students. Today class 10th Arithmetic Progression, chapter 5, second part, that is related to the solution of exercise 5.2. Up to 4 question has been done in my first video, and today I am going to start 4th onward, 5th onwards. First question of this exercise, fifth, second part is there. The series is given here 18, 15, whole 1 by 2, 7, 13 and so on. The last term is minus 47. We have to find out which term is minus 47. That's why we will write here A is equal to 18, D is equal to 15 whole 1 by 2 minus 18 is equal to 15 to 31, 31 upon 2 minus 18 is equal to 31 minus 36 by 2. See, 30 minus 31 by 2 minus 18, LCM 2, 31 minus 36, 5 minus 5 by 2. D is equal to A and D is written. We have to find L is also given minus 47. We have to find out the value of N. आपको इसमें बताना है कि सीरीज का कौन सा टर्म माइनस 47 है. तो एल का फार्मूला आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 47 दिया है. ए 18 एज इट इज रिटन above and n for n to find out, that's why n will be written as n only, and d is minus 5 by 2 is equal to minus 47. Now n minus 1 into minus 5 by 2 is equal to minus 47 minus 18 is equal to 5 minus 55. N is equal to n minus 1 is equal to minus 55 into 2 by minus 5. Now minus will multiply to minus, it will become plus, and 11 to 22. 11 to 22. See the solution once again. A 18 n minus 1 into 5 by 2. Now 47 minus 18 will be subtracted here. Here 65 minus 65 will cancel to 5 1 ja 5, 5 3 ja 15, 13 2 ja 26. Then n is equal to 26 plus 1 is equal to 27. That is the answer. Okay students, n की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, second part is done, and I think question number 6 is given that check whether minus 150 is a term of AP 11, 8, 5, 2, etc. I want to give you a hint that the same, this question will be also done. L, at the place of L will be written as minus 150, and A and D is you can find like this question. And if n is coming whole number,
then it will be minus 150 will be any term. Otherwise, it is not term. If n comes not in whole number, I mean fractional or negative, then it will be not term. Okay? So you will do this one like 6. 7. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 11th term. Question number 7. 11th term is given A11. A11 is 38. A16 is also given. That is the 73. And we have to find out A31. Question mark. Students, for this type of question, many questions are given like this. You should see that from these two equations can be formed by the formula of an formula. An is equal to A plus n minus 1 into D. See, A plus 11 minus 1 into D is equal to 38. Then A plus 10D is equal to 38. This is first equation. And like this, you see here that 11 for the 11th term, A plus 10D will be written. For the 16th term, A plus 15D will be written. बिकॉज देखिए आप ये 1 माइनस हो जाता है ना, जितने A11 दिया है तो आप A plus 10D डायरेक्ट लिख सकते हैं. मैंने लिख के दिखाया पहले. अब इसके आगे अब जो आएगा ना उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. जैसे A16 है, इसको आप लिख सकते हैं A plus 15D डायरेक्ट इक्वल टू 73. ओके, 2 equations. Question number first and second, this one. By solving this 2 equation, we can find out the value of A and D, and as well as the value of A31. Okay. Subtract equation first from second. We should write here subtracting equation first from equation second. सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए. सेकंड को पहले लिखिए A plus 15D इक्वल टू 73. A plus 10D इक्वल टू 38. माइनस करिए, इजीली माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 5D इक्वल टू होगा. माइनस करिए 13 minus 8, 5, 6 minus 3, 3. Then D is equal to 35 by 5 is equal to 7. दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है. ठीक है, D निकल गया. अब आप D की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए. पुटिंग D is equal to D is equal to 7 in equation first. जो इक्वेशन छोटा हो उसमें रखना उचित रहेगा, जल्दी निकल जाएगा. तो आपने D निकाला है तो A plus 10D है. 10 into 7 is equal to 38. Then A is equal to 38 minus 10 7 जा 70. 38 minus 70, ये माइनस कर दीजिए. 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3. ये -32 आ रहा है. A की वैल्यू और D की वैल्यू 7. तो अब आप A31 निकाल लेंगे. यहाँ दिख रहा है A31 इक्वल टू A plus 30D होगा और A की वैल्यू -32 है प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 7 निकला है. तो
ये हो जाएगा -32 प्लस 210 इक्वल टू 10 में 2 गया 8, 10 minus 3 7, 178. That is the answer. 178. ये बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक. Okay students, now we will do the further questions. Up to 7, I think question number 8. 8 is given, an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. 50 terms are there. A3 given and L given. And we have to find out 29 find करना. चलो इसको भी कर देते हैं. Question number 8. 8 नंबर में इसमें लिख दिया है कि n is equal to 50. 50 टर्म कंसिस्ट कर रहा है ये एपी, और थर्ड टर्म दिया है 12, यानी A3 is given 12 दिया है. इसके बाद एक और टर्म दिया है, और लास्ट टर्म लिखा है 106. लास्ट टर्म मतलब L इक्वल टू 106. अब आप इसमें A और D को लेट कर दीजिए. लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म. यहाँ भी मुझे लिखना चाहिए था, आप यहाँ लिख सकते, दिखा दिए हैं, कोई बात नहीं. यहाँ आप लिख सकते हैं लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म. तो लिख देते हैं इसमें लेट A एंड D be the first term and common difference of AP. Be the first term and common difference of AP. देखिए आगे मैं लिखूंगा कॉमन डिफरेंस को CD लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा. इसको CD में लिखा करूंगा. कॉमन डिफरेंस इज ऑफ AP हो गया. इस AP का A और D फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस है, तो यहां से n इक्वल टू 50 है, तो आप A3 से इक्वेशन बनाइए. अभी जैसे पीछे मैंने बनाया था, A3 है तो एक कम हो जाएगा, n-1 है तो A प्लस 2D हो जाएगा. जितना भी लिखा है ना उससे कम करके इंटू D कर देंगे, तो A प्लस 2D एक निकाल कर मैंने दिखाया आपको. उसी तरह से जैसे A प्लस 11D को A प्लस 10D आता है, उसी तरह जितने A होगा ना उसमें एक कम होकर D से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay students, see this solution. Question number 8. N is equal to 50, A is equal to 12, L is equal to 108. Let A and D be the first term and common difference of AP. A3 12 दिया है, तो A plus 2D is equal to 12 हो जाएगा. L लास्ट टर्म दिया है 106 दिया है, 106. तो इसको सॉल्व करेंगे. A की वैल्यू नहीं पता है, N 50 पता है, तो A प्लस 49D 106 हुआ. सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो 47D इक्वल टू 96 और D इक्वल टू 96 बाई 47 यानी 2 आ गया. अब D की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया जाए A फाइंड करने के लिए, तो A प्लस 2D है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 माइनस 4 यानी 8 आ गया. अब 829 निकालना है. 829 इक्वल टू A प्लस 28D होगा, और इसमें वैल्यू आप A और D का रख दीजिए. A निकला है 8 और प्लस 28 इंटू D निकला है
तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56, 28 टू जा 56, 64 आंसर होगा इसका। 64 आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अप टू 8 this 8 number question completed. Now I am going to rub. अब इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। आप स्नैप ले सकते हैं, स्नैप ले लीजिए। इसके बाद मैं मिटा रहा हूं। इस क्वेश्चन मिटाते समय मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो आप अपने से करिए, यानी यहाँ सॉल्यूशन जो बता दिया जा रहा है, जो मेथड आप सीख ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी ज्यादा क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को इससे नोट करके ही आप ध्यान है। उस क्वेश्चन को बता दिया गया तो उसको आगे सीखने के लिए आप सॉल्यूशन पढ़ लिए, सुन लिए, अच्छी बात है, फिर अपने से करिए। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन सीखने के बाद उस तरह क्वेश्चन जरूर करना है, तब आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे, जो सीखेंगे उस तरह का आने लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर जो दिया है 9, थोड़ा भी चेंज किया है तो मैं जरूर इसको करूंगा। देखिए लिखा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द एपी इज 0 करे कि कौन सा एन पूछा है कि एपी, तो इसमें मैं आपको हिंट कर देता हूं 9 के लिए, और 9 में करना उचित नहीं समझता हूं कि आप भी कुछ करेंगे। ये थर्ड दिया है, ये 3 दिया है, और ये 9 दिया है, ये 3 4 लिखा है, और ये 9 दिया है, मतलब 9th टर्म जो है -8 है, और आपसे एन इज इक्वल टू 0, तो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, इस पे तो 2 आप इक्वेशन बना लेंगे इजीली, और दोनों इक्वेशन से ए और डी आपको मिल जाएगा। जैसे a + 2d इज इक्वल टू 4 हो गया। a प्लस, ये हिंट्स में दे रहा हूं बेटा, ये सॉल्यूशन नहीं है, हिंट्स है। a + 8d इक्वल टू -8, और यहां बनेगा a + n-1 × d इक्वल टू 0। आप यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ये फर्स्ट को सेकंड में से जब माइनस करेंगे तो ए और डी ए मिलेगा, ए कट जाएगा, डी मिलेगा, फिर पुट कर देंगे एक में, तो ए और डी दोनों मिल जाएगा, और ए और डी इसमें आप रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में दिया है कि द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। हाँ, इसको जरूर बताया जाएगा। इसमें दिया है कि जो A17 है वो A10 से 17 मोर है ना, तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 17, यानी 17th टर्म ऑफ एपी उसके 10th टर्म से 17 बड़ा है, 17 अधिक है। तो ये पूछा है आपसे कि बताइए उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस वेरी सिंपल है, ये गिवन यहां पर आप लिख सकते हो, तो लेट कर लीजिए, इसमें भी लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and CD कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो ए की जगह हम आप ए लिखे, प्लस 17 है, ये A17 का मतलब A + 16D होगा, माइनस, यहां पर पहले आप उतार लीजिए, A17 माइनस A10
इक्वल टू 17। अब यहाँ पे लिखिए a प्लस 16d हो जाएगा माइनस a, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, a प्लस ये 9d होगा, a प्लस 9d इक्वल टू 17 है। अब ब्रैकेट को हम खोलेंगे, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 17, तो a कैंसिल होगा, माइनस a प्लस a, यहाँ पर 16d माइनस 9d, 16 में से 9 घटा दीजिए 7 आएगा। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, सही है ना। A 17 term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ठीक है, 10th term प्लस 9d, तो 7d इक्वल टू 17 हो रहा है, d इक्वल टू 17 बाई 7, देखिए यहाँ ये 17 नहीं 7 है ना, 7 है, a 17 माइनस a 10 इक्वल टू 7 है, तो इसमें 17 को हमने लिखा जैसे आप देख रहे हैं, ये a 60 और ये ब्रैकेट खुला, ये कैंसिल हुआ, तो 7d इक्वल टू 7 हो गया, तो d इक्वल टू 7 बाई 7 यानी 1 होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, up to 10 completed, 11 which term of AP 3, 15, 27, 39 and dot will be 130 more, इसको भी बताएंगे, इसमें भी थोड़ा सा चेंज देगा तो जरूर मैं बताऊंगा आपको। लिख रहा है ना कि which term of AP पहले लिखिए जो दिया है, AP is given as 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 dot will be 132 more than its 54th term। इसका कौन सा टर्म जो है 132 मोर होगा इसके 54th टर्म से, तो इसमें दिया है गिवन, हम मान लेंगे कि nth टर्म जो है होगा वो nth टर्म मोर होगा। पूछा है कि which term of this AP will be 132 more than its 54th term, तो लिखेंगे let nth term of AP of this AP will be 132 more than 54th term, 132 more than a 54। ठीक है, आपने समझा कि जो nth टर्म है, nth टर्म को आप an भी जानते हैं, हाँ, तो nth टर्म का मतलब कि an जो है a54 से 132 मोर है, तो an माइनस a54 इक्वल टू 132, क्योंकि nth टर्म जो है 152 मोर है तो ये बड़ा होगा, तो बड़े में से ये छोटा वाला माइनस कर रहे हैं, तो 132 आएगा, तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से फ्रॉम द AP we get a equal to, we should write here a equal to how much, 3, d equal to 15 minus 3 equal to 12,
Now put the value in this equation. an means a plus n minus 1 into d minus here given a 54 means a plus 54 minus 1 into d is equal to 132. Okay. Now put the value for a 3 and for n is to find out. So n should be written as n, and for the d 12 minus a 3 plus 54 minus 153 d is equal to 132. अब आप ब्रैकेट खोलिए दोनों तरफ, तो ये होगा 3 प्लस, दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए ये n माइनस 1 में 12 से करेंगे तो 12 माइनस 12 12n माइनस 12 माइनस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 माइनस 53d और d की वैल्यू तो आपको पता ही है, d की वैल्यू 12 है, इक्वल टू 132. अब इसको यहां करते हैं. थोड़ा सा कर लीजिए इसको, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा. 12n एक लाइन और यहाँ 12n माइनस 12 और उसमें 12 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू 132. तो 12n यहाँ माइनस 12 माइनस, इसको जोड़ दीजिए दोनों माइनस को, तो 12 में ये जोड़ लिया जाए तो 6 तो 8 होगा, 3 1 4 होगा और ये 6 माइनस 6 इक्वल टू 132. इसके बाद ये 12n इक्वल टू 132 प्लस 648 इक्वल टू 780 12n इक्वल टू, तो n इक्वल टू 780 बाई 12. ये क्वेश्चन नंबर कट जाएगा ना, 12 6 जा 72 60 12 5 30 60. ठीक है, n इक्वल टू आ गया 65. दैट इज द आंसर. ये आंसर हो गया आपका. सॉल्यूशन देख लीजिए ध्यान से, यहां से यहां तक स्टेप भी ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 12 में दिया है 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term. हाँ, इसको बच्चे कई बार पूछते हैं, इसको मैं करने जा रहा हूँ. 12 नंबर क्वेश्चन पहले समझ लीजिए. 2 AP दिया है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस उसको डी मान लेंगे. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा ये पूछा है. तो आप इसमें चूंकि सेम 2 ये अलग अलग एपी है और कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, तो फर्स्ट टर्म तो डिफरेंट होगा ना. तो फर्स्ट टर्म को लेट कर दीजिए. लेट ए एंड स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ first and second AP respectively. First and second AP
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, गिवन एज A100। तो पहला जो टर्म है कैपिटल ए, तो A100 मतलब ऐसे A100 माइनस स्मॉल a100 इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो पूछा है हमसे 1000। तो चलिए इसमें रखिए पहले, तो कैपिटल ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि D1 इक्वल टू D2 ये गिवन इक्वल है, गिवन ये भी दिया है कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D। तो ए माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना चाहिए, तो यहाँ स्मॉल ए लिखेंगे और प्लस n की जगह n मतलब 100 टर्म ही इसमें भी पूछा है, तो -1 इंटू डी यहाँ भी वही रहेगा और इक्वल टू 100 लिखिए। अब इसको सॉल्व करते जाइए। a प्लस 99d माइनस, ब्रैकेट में पहले लिख लीजिए, a प्लस 99d इक्वल टू 100। ओके, a प्लस 99d माइनस, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, a माइनस 99d इक्वल टू 100। तो अब ये -99 दो जगह प्लस माइनस में है, कैंसिल होगा, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। अब इस इक्वेशन का यूज होगा 1000 टर्म निकालने में, तो 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 इज टू बी फाउंड आउट। ये आपको फाइंड करना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो ये 1000 मतलब a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू स्मॉल ए प्लस 1000 माइनस 1 इंटू ये डी, तो दोनों में इक्वल दिया हुआ है। सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर जो हमने लिखा है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो a प्लस 999d होगा इक्वल टू a प्लस 999 स्मॉल d इक्वल टू, हम हाँ यहाँ माइनस कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ माइनस होगा, ये तो पूछा गया है ना, तो जब माइनस होगा और ब्रैकेट खोलेंगे, तो पहले भी ब्रैकेट में लिखिए, इसके बाद ब्रैकेट खोल लेंगे, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d इक्वल टू निकालना है आपको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में 999d, तो आ जाएगा यहाँ a माइनस स्मॉल ए, और a माइनस स्मॉल ए फर्स्ट इक्वेशन से 100 मिला है, तो 100 यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर होगा। ये नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है स्टूडेंट, आशा है समझ में आया होगा। इसके बाद अब रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, और ये मिटाते समय मुझे टाइम मिल रहा है आपसे बात करने के लिए, इसलिए इसमें कुछ सुझाव देना भी उचित समझता हूँ। ये क्वेश्चन आप करेंगे, सॉल्यूशन मतलब इसको पढ़ेंगे, जो भी ऑनलाइन बता रहे हैं सामने तो नहीं है, फिर भी इसमें जो भी आपको दिक्कत होगी, अब हमसे कमेंट में जरूर पढ़ता हूँ, जरूर बताएं कि आपको और क्या चाहिए। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ
वो इसमें जो भी जरूरत महसूस हो वो कमेंट से पूछ सकते हैं। तो 12 अप टू 12 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-digit नंबर आर डिविजिबल बाय 7? ये भी क्वेश्चन बताने लायक है, थोड़ा चेंज जब कर रहा है तो इसको बताना ही चाहिए। और इसको चलिए लिखता हूं 13, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स आर डिविजिबल बाय 17? 3 digit नंबर कह रहा है।